Yes, hello Shweta, welcome on Europedia platform, and let's start your snap. As you mentioned, you want a snap for RAC. So you are preparing for BPSC, lecturer position in various polytechnic colleges of Bihar. Yes, So, sir. Shweta, my first question is to you. What is relative humidity? Sir, relative humidity is term indicate moisture absorption capacity of air. Ratio of mass of water vapor divided by mass of water vapor in saturated state. It is indicated in term of percentage. That is, which device we use to measure this relative humidity? sir, hygrometer. Hygrometer. Yes, sir. Okay. Just suppose you are not having hygrometer, then how you can measure relative humidity? Suppose I am giving you only thermometer. Can you measure with that? No, sir. So no idea. Thermometer के साथ we cannot measure humidity, or we can measure. Sir, idea नहीं. Okay, fine. You heard about adiabatic saturation? Yes, sir. Sir, adiabatic saturation is a process of cooling and humidification. Cooling and humidification. Humidification take place simultaneously is known as adiabatic saturation. ठीक है. तो आप मेरे को बताओ VCRS cycle में, you know, sometime we carry out superheating. Yes, sir. So why actually we carry out superheating, and what advantage we get in superheated VCRS cycle? सर सुपरहीटेड के केस में इवापोरेटर जब हम सुपरहीटेड केस करते हैं तो मॉइस्चर का चांस इवापोरेटर में होने का मॉइस्चर और वेपर का मिक्सचर जो रहता है उससे अगर हम सुपर हीट कर गए तो ज्यादा उसकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज होगी. कुछ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप के रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं. जैसे कि अमोनिया में सीओपी डिक्रीज होगी, लेकिन R11 और R22 के केस में सीओपी भी इंक्रीज करेगी और ब्लेड इरोजन और ये सब का चांसेस डिक्रीज होगा क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट बिल्कुल भी रिमूव हो जाएगा. कंप्रेशन में सर मॉइस्चर इंटर नहीं करेगा तो उसका लुब्रिकेंट वाश ऑफ नहीं होंगे, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अच्छा, थ्रोटलिंग क्या होता है? हाउ वी कैरी आउट थ्रोटलिंग? सर थ्रोटलिंग मींस कांस्टेंट आइसेंथेल्पिक प्रोसेस. ये फ्लो का अगर किसी रेस्ट्रिक्टेड पैसेज के थ्रू फ्लो करवाते हैं तो उस इस केस में थ्रोटलिंग होती है. ये कैपिलरी ट्यूब या थ्रोटल वाल्व में होती है. ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इसमें प्रेशर का लॉस होता है और एक्सपेंशन. अच्छा, how we get a drop in temperature when we carry out throttling? Sir, how we get drop in temperature? How temperature drops quickly when we carry out throttling of liquids? सर प्रेशर का लॉस होता है. ठीक है. हाँ, तो सर इंथैल्पी कांस्टेंट है तो CP/dT. सर इंथैल्पी कांस्टेंट आइसेंथेल्पिक प्रोसेस है तो H1 = H2 आएगा. ठीक है, ठीक है. और सर एक्सपेंशन टेक प्लेस होगा ना, तो उसके कारण प्रेशर टेम्परेचर का भी तो ड्रॉप होगा. एक्सपेंशन से टेम्परेचर ड्रॉप होगा. यस सर. बट यू आर कैरिंग आउट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. यस सर. तो उससे भी टेम्परेचर ड्रॉप होगा. एक्सपेंशन तो हम किससे करते हैं? Expansion we are carrying out, expansion is taking place due to the friction in the throttling device. It's not a kind of piston cylinder arrangement. Yes sir. Yes sir. So, okay, you heard about 1 ton of refrigeration. Yes sir. Can you define this? Yes sir. Amount of heat which we extracted from 1000 kg of water at 0 degree centigrade to convert into ice at 0 degree centigrade in 24 hours is 1 ton of 1000 kg होता है या 1 ton होता है? ये दोनों बराबर है, एक ही बात है. दोनों बराबर है. Are you sure? Yes sir.
अच्छा, 3 तरह के टन होते हैं, अलग अलग टन्स हैं, जैसे एक यूएस टन होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टन. देयर इज अनदर टन इन इंटरनेशनल मार्केट नोन एज बिग टन, इज आल्सो नोन एज यूके टन. एक तीसरा टन होता है जिसे बोलते हैं मीट्रिक टन. यस सर. तीन तीन टन तो अलग अलग होते हैं, तो ये कौन से वाला टन है, मीट्रिक टन, यूएस टन या ब्रिटिश टन? सर ये तो सर ये टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट मेजर करने के लिए हुआ, और वो सब टन मास मेजर करने के लिए. जो जो 1 ton of ice you are taking na, 1 ton of water which यस you are सर. taking, that is 1 metric ton यस सर. यस सर. or 1 US ton or 1 British ton. 1 metric ton सर. 1 metric ton. But that definition was given by ASHRAE, American Society. They don't follow metric system, they follow their own US system. सर मुझे इसका आइडिया नहीं है. ठीक है, तो आपने VARS सिस्टम में यू आई होप यू हर्ड अबाउट इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर. यस सर. कैन यू टेल मी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर? सर ये पंपलेस डिवाइस है. इसमें 3 रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं. वाटर, इसमें 3 रेफ्रिजरेंट ने 3 सिस्टम यूज करते हैं, वाटर, हाइड्रोजन और अमोनिया. तो अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं, वाटर एब्जॉर्बर की तरह, और H2 पार्सल प्रेशर रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज या फिर पार्सल प्रेशर क्रिएट करने के, पार्सल वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं. Okay. अच्छा, आपने कहा कि पंपलेस होता है. व्हाई पंप इज नॉट रिक्वायर्ड? VARS में पंप तो होता है ना, बिकॉज वी नीड टू सर्कुलेट द weak strong solution into the generator. सर इसमें नेचुरल, पंपलेस कैसे हो जाता है? सर इसमें नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है डेंसिटी डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. सर डेंसिटी का डिफरेंस होता है, उसके कारण इसमें नेचुरल सर्कुलेशन होगा, तो इसलिए पंपलेस है. You heard about automatic expansion valve? यस सर. बताओ कुछ इसके बारे में. सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा. You know, when we go for purchasing any refrigerator or heat pump या जो हमें एयर कंडीशनर हम परचेज करते हैं, some rating we get, जिसे बोलते हैं SEER. some SEER rating logo you are going to find out, है ना? What is that SEER? सर आइडिया नहीं है. अच्छा, कुछ रेफ्रिजरेटर की या एयर कंडीशनर की, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द टेस्टिंग? व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग वी कैरी आउट फॉर ए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर? सर ओजोन डिप्लीटेशन पोटेंशियल उसकी एक टेस्ट करते होंगे. तो वो तो रेफ्रिजरेंट का है ना. यस. वो तो रेफ्रिजरेंट का है. हाँ, रेफ्रिजरेटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं कि दिस इज द बेस्ट और व्हाट इज ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट? हाउ यू विल टेस्ट ए रेफ्रिजरेटर? सर मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं गेस. हाँ, यस, टेक योर टाइम और गेस. डोंट वरी. सर कंप्रेशर के वर्किंग के बेसिस पे उसको, मुझे लगता है उसकी टेस्टिंग होती होगी. सबसे ज्यादा मेन इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट तो अच्छा, कंप्रेशर. आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो गर्मी में ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है या सर्दियों में ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है? घरों में हमारे रेफ्रिजरेटर होता है ना, विच वी यूज इन समर आल्सो, विंटर आल्सो. यस सर. तो क्या इक्वल जो है वो उसका कंजप्शन रहता है? सपोज यू आर ऑपरेटिंग इट एट सेम काइंड ऑफ टेम्परेचर. सर गर्मियों के टाइम पे ज्यादा कंजम्पशन करेगा. ऐसा क्यों? सर गर्मियों के टाइम पे रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करेगा, तो उसका COP, और सर्दियों के टाइम पे वो हीट पंप की तरह वर्क करेगा. सर्दियों में हमारा रेफ्रिजरेटर हीट पंप की तरह काम करता है. सर सर सॉरी सर, मैं क्वेश्चन गलत प्रेडिक्ट कर ली थी. मैं उससे AC की तरह प्रेडिक्ट कर ली थी. रेफ्रिजरेटर. बिहार ना, तो वहां पे सब जीरो तो नहीं जाता टेम्परेचर? यस सर. यस सर. सर रेफ्रिजरेटर गर्मियों के टाइम पे सर ज्यादा कंजम्पशन करेगा. रीजन क्या है उसका? सर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, सर्दियों के टाइम पे तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ऑलरेडी कम है. गर्मियों के टाइम पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सर बहुत हाई, मतलब हाई है, तो रेफ्रिजरेटर को तो लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, तो इसलिए सर्दियों के टाइम पे. आपने श्वेता एक वर्ड मेंशन किया था, ODP, ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल. तो which particular refrigerant we consider, as a reference for measuring the ODP? सर CFCl3 ट्राइफ्लोरो. कितना होता है? How much is the ODP of that refrigerant? सर 1
1. Yes, sir. ठीक है. My last question to you, what do you understand by multi-stage compression? What is the advantage of carrying out multi-stage compression? सर सिंगल स्टेज कंप्रेशन करेंगे सर तो प्रेशर रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा. तो सर कंप्रेशर का वर्क आउटपुट कंप्रेशर को वर्क इनपुट बहुत ज्यादा हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा. उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी भी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है. तो इसलिए सर हम मल्टी स्टेज में कंप्रेशन करते हैं कि अगर मेरे को 1 to 16 जाना है तो मैं उसे अगर सिंगल स्टेज के ना करके पहले मैं 1 to 4 गई फिर 4 to 16 गई तो ये सर मल्टी स्टेज कंप्रेशन हुआ. मल्टी स्टेज कंप्रेशन विद इंटरकूलिंग कर रहे हैं तो उसका फिर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया. तो इस केस में हम लोग की वर्क इनपुट की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर की. ठीक है श्वेता, अभी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ. देखो ओवरऑल आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट इन योर डिलीवरी. आपका नॉलेज भी ठीक लग रहा है मेरे को. यू आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. थोड़ा आपको रिफाइन करना है. जैसे मैंने आपसे शुरू किया था कि रेफ्रिजरेटर में हम कैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है. एक्चुअली क्या होता है जब हम प्रेशर ड्रॉप होता है ना ड्यू टू फ्रिक्शन, तो स्मॉल लिक्विड एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू वेपर. थोड़ा सा लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में. तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, इट इज गोइंग टू टेक द latent heat of vaporization. So from where it will take the latent heat from its neighboring molecule, neighboring particle. तो थोड़ा सा लिक्विड तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट रिमेनिंग लिक्विड विल रीच टू द वेरी लो टेम्परेचर. अब थ्रोटलिंग कोई हीट ट्रांसफर तो नहीं होता ना. नो सर. अब प्रेशर से टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, प्रेशर से अगर टेम्परेचर ड्रॉप करेगा वो डिपेंड करेगा ना. आप ऑल द टाइम्स यू कैन नॉट से कि प्रेशर अगर बढ़ रहा है घट रहा है या प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा. दैट यू कैन नॉट से एक्चुअली. You know, even in constant pressure process, if you are adding it, temperature is going to increase. If you are carrying out some constant pressure expansion of an ideal gas, you know, constant pressure पे कोई गैस एक्सपैंड करती है तो टेम्परेचर क्या करता है? बढ़ता है घटता है? कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हो रही है तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा. एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है. एक्सपेंशन हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, मींस बाउंड्रीज आर एक्सपेंडिंग, बट टेम्परेचर क्या कर रहा है? टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग. राइट. तो थोड़ा सा उसको समझना है. 1 US टन होता है. दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय एशरे, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर्स. तो वो जो टन यूज करते हैं ना, दे यूज US टन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टन. और शॉर्ट टर्म में 908 kg होते हैं, 1000 kg नहीं होते. तो 908 908 मल्टीप्लाई बाय 334 डिवाइड बाय 24 इंटू 3600 करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 3.51 यू विल गेट. तो 1 टन इक्वल टू 3.5 किलोवाट. 1000 लेके करोगे तो यू विल नॉट गेट 3.5. बुक्स में कर देते हैं 1000 लेके करते हैं, बाद में उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं कि दैट इज अप्रोक्सीमेट टू 3.5. वो गलत है, बिकॉज दैट डेफिनेशन वाज गिवन बाय एशरे. इसलिए हमें कौन सा टन यूज करना पड़ता है? यूएस टन. और यूएस टन में 908 kg होते हैं. तो या तो 1000 kg मत बोलो, बोल दो टन. टन बोलोगे फिर कोई दिक्कत नहीं. सर मैंने कहीं पढ़ा था इसलिए मुझे याद. चलो कोई बात नहीं. इलेक्ट्रोलक्स आपने ठीक बताया. इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर मतलब वर्किंग, ये थोड़ा सा एक्सपेंशन वॉल्व्स का पढ़ के रखो. थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल्व क्या होता है, कैसे काम करता है. ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व्स क्या होते हैं. ठीक है. सुपर हीटिंग ठीक है, सुपर हीटिंग हम करते हैं जस्ट टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ कंप्रेसर, so that only vapor will enter, superheated vapor will enter into the compressor. Otherwise, because if liquid is entering, that can damage the compressor. तो सुपर हीटिंग से दूसरा आपको एक फायदा क्या होता है कि अगर आप सुपर हीटिंग यू आर कैरिंग आउट इनटू द इवेपोरेटर ओनली, तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जाता है. बट ऑल्दो ड्यू टू सुपर हीटिंग प्रेशर आपका जो है एंट्री टेम्परेचर टू द कंप्रेसर इंक्रीजेस, तो कंप्रेसर वर्क आपका बढ़ जाता है सुपर हीटिंग से. तो ओवरऑल सीओपी कैन इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट. ओडीपी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल ठीक है, वो R11 आपका कितना होता है? वो 1 होता है आपका. चलो ठीक है, मेरे को ठीक लगा है आपका डिलीवरी स्टाइल श्वेता. ओवरऑल इट्स फाइन. थोड़ा सा और चीजों को देखो. एक होता है सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो मैंने आपको बताया ना, SEER. होता क्या है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसका सीओपी कांस्टेंट नहीं होता. आपने खुद एक क्वेश्चन को आंसर किया कि सर समर में जो सीओपी लो होता है, विंटर में सीओपी हाई होता है, बिकॉज विंटर में टेम्परेचर डिफरेंस कम है.
समर में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है। तो एक हमें रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक लिखा हुआ मिलता है SEER, जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ये पूरे सीजन का एवरेज सीओपी क्या है, बिकॉज दे कैन नॉट मेंशन द हाईएस्ट सीओपी एंड इवन दे कैन नॉट मेंशन द लोएस्ट सीओपी। हाई मेंशन करने से डाउट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो सीओपी आपको मिलने वाले नहीं है हर टाइम। लो वाली क्या होगी, उनको उससे उनका एक काइंड ऑफ मार्केटिंग वो कम दिखेगा कि हाँ यार दे आर मेंशनिंग वेरी लो सीओपी। सो इट इज स्टैंडर्ड एक्चुअली टू मेंशन द average COP of a particular season, that is known as SEER, seasonal energy efficiency ratio। ठीक है, चलो ठीक है श्वेता, सर एक रिवाइज अगेन एंड इफ यू फील अगेन यू कैन जॉइन। सर एक डाउट है हाँ, सर, रेफ्रिजरेटर की टेस्टिंग आपने बोला था, तो सर ये कैसे करते हैं? देखो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। एक तो आप आइस मेकिंग टाइम देखते हैं उसका, रेफ्रिजरेटर में आइस आपका कितने टाइम में मिल जा रहा है, ठीक है। और आपका सीओपी है, मेजर आप सीओपी टेस्ट करते हो कि उसका सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी कितना है एक ईयर राउंड एवरेज ए पर्टिकुलर सीजन का। तो इस तरह की टेस्टिंग है जो हम इंडस्ट्री में करते हैं बिफोर एक्चुअली यू नो सप्लाइंग दैट प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको थोड़ा देखोगे ना टेस्टिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, यू विल फाइंड सम मोर थिंग्स।